Hello to all the TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture. So in the last lecture we have learned about the agglutination reaction, that how the agglutination reactions are being employed for the heme agglutination purposes, how the heme agglutination can be used for the detection of the antigen presence or for the detection of the blood group even. Okay, in this lecture we are going to see how the agglutination reaction can be used in the opposite manner for the detection of the virus or for any other purposes. Okay, the point which we are going to study is the agglutination inhibition reaction. Okay, here we are going to see how the absence of agglutination can also lead to the positive result. We are going to learn that thing also. Okay, so generally the agglutination means what? The clumping that results due to the antigen antibody reaction. Okay, but here when that clumping is not going to take place, when that clumping thing or the clumping phenomenon is not going to happen, it will also lead to the indication of the positive test. Okay, usually when we do the agglutination test, okay, there we observe the agglutination and we say that that result is positive because agglutination is observed. But here in this case exactly the opposite thing happens. Here what happens is that when the agglutination reaction takes place, we can say that the reaction is positive. Okay, not positive, that reaction is negative. Okay, when the agglutination takes place we indicate it as the negative test. Okay, we don't consider it as a positive test. Okay, so how this is been used for the different purposes, for different diagnosis things, okay, we are going to see. So the first important application of the agglutination inhibition is for the studying of the presence or absence of the virus again. Okay, particularly the viral antibodies. Okay, then it can also be used for the detection of the pregnancy or in the woman. Okay, if that woman is pregnant or not, we can detect by using this test which is agglutination inhibition. Okay, so let's start. So agglutination inhibition में क्या होता है? ऑपोजिट टू agglutination, जनरली जब हम agglutination स्टडी करते हैं वी से कि agglutination हुआ है मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, वो पेशेंट इन्फेक्टेड है. बट agglutination नहीं हुआ है, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज और द वायरस इज एब्सेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैम्पल. ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द agglutination फिनोमिनॉन. बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट है, यहाँ पे उल्टा केस है. ओके, हियर व्हाट हैपन्स इज, अगर आपको agglutination दिख रहा है दैट मीन्स कि वो पेशेंट में डिसीज नहीं है. एग्जैक्टली ऑपोजिट, agglutination है मतलब डिसीज नहीं है या वो टेस्ट निगेटिव है. ठीक है, और अगर agglutination ऑब्जर्व नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो डिसीज्ड है पेशेंट या फिर उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव है. ओके, तो ये कैसे यूज़ किया जा सकता है फिनोमिनॉन आज हम स्टडी करेंगे. तो जो पहला एप्लीकेशन इनका है वो वायरल इन्फेक्शन डिटेक्शन में है. ओके, अगर एक कोई पेशेंट है, मैंने उसको देखा, उसको like study किया, so I understood that that particular patient has symptoms of the measles virus. Okay, measles virus infection का वो पेशेंट वैसे इंडिकेट कर रहा है, सिम्टम्स दिखा रहा है. बट अभी मुझे कंफर्म करना है कि दैट पेशेंट इज़ एग्जैक्टली सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इन्फेक्शन और नॉट. तो वो मैं कैसे करूँगी? फर्स्टली आई विल टेक द सीरम सैम्पल ऑफ दैट पेशेंट. ओके, एनी टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सैम्पल प्रिपरेशन. ओके, आई विल टेक द सैम्पल फ्रॉम दैट पेशेंट. अब मुझे पता करना है इफ दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसीज और नॉट. देन व्हाट आई विल डू इज़ कि मैंने उसका सैम्पल लिया, सीरम सैम्पल पर्टिकुलरली. अभी किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है मतलब उसके सैम्पल में या सीरम में क्या होगी? उसकी एंटीबॉडीज़ होगी उस वायरस के अगेंस्ट. उसकी बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी तो वो उसके सीरम सैम्पल में होगी. ओके, अभी आई एम थिंकिंग कि उस पेशेंट में शायद वो डिसीज़ मुझे दिखेगा, मीजल्स उसमें है, तो उस मीजल्स की एंटीबॉडीज़ कहाँ पे होगी? उस पेशेंट के सीरम सैंपल में होगी. ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट सैंपल विच इज़ हैविंग द एंटीबॉडीज ऑफ मीजल्स. देन व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक इट, आई विल ऐड टू इट द वायरल
cells, okay, that may be the measles viral cells, okay. तो measles virus की सेल उसमें डालनी है, नॉट सेल, measles virus डालना है, okay. Then after that I will incubate it for a time, okay, for a particular time. अब यहाँ पे होगा क्या, अग्लूटिनेशन कब होता है, जब पार्टिकुलेट या लार्ज जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से जब रिएक्ट करता है तब अग्लूटिनेशन होता है. जब एंटीजन स्मॉलर है या फिर वो सोल्यूबल फॉर्म में है तब वो अग्लूटिनेशन नहीं दिखाता है, ठीक है. अब यहाँ पे होगा क्या, एक और कंसेप्ट है हेप्टेन नाम का कंसेप्ट, आपने शायद पढ़ा होगा ये हेप्टेन नाम का कंसेप्ट. तो हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन एक एंटीजन होता है लेकिन वो एक इम्यूनोजेन नहीं होता है. एंटीजन और इम्यूनोजेन में डिफरेंस क्या है, एंटीजन क्या करता है, एंटीजन जाके एंटीबॉडी को बाइंड करता है, बट इम्यूनोजेन क्या करता है, वो तो बाइंड होता है एंटीजन के जैसे, बट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी वहाँ पे मिलती है. फिर वो अग्लूटिनेशन हो सकती है या फिर प्रेसिपिटेशन हो सकती है. मतलब क्या, अगर हेप्टेन है वो मॉलिक्यूल, तो हेप्टेन क्या करेगा, बस बाइंड होगा जाके एंटीबॉडी से, वो आगे की कोई रिएक्शन नहीं देगा. बट अगर हमने हेप्टेन को कैरियर मॉलिक्यूल दिया, उसके साथ रिएक्ट होने दिया, देन वहाँ पे क्या होगा, दैट विल लीड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज वेल एज वहाँ पे कुछ विजिबल क्लम्पिंग आपको दिखेगी या फिर आपको वहाँ पे कुछ रिएक्शन ज़रूर मिलेगी, ठीक है. ये होता है एक इम्यूनोजेन. तो हेप्टेन यहाँ पे कौन है, ये वायरस हेप्टेन है, ठीक है. ये वायरस जब आरबीसी से रिएक्ट करते हैं तब क्लम्पिंग करते हैं, हमने पिछली बार भी देखा था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब पेशेंट का हमने सैंपल लिया है उसमें हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ है. अब मैंने वायरस डाला तो ये वायरस ऑब्वियसली बात है किससे जाके बाइंड होगा, इन एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा, क्योंकि ये किसके लिए बनी है, खास इस वायरस के लिए, मीजल्स के लिए बनी है, ठीक है. तो ये वायरस मैंने डाला उस सैंपल में, तो वो एंटीबॉडीज़ के साथ वायरस बाइंड हो चुका है. अभी मैंने आरबीसीज डाली, ओके. अब आरबीसी बेचारी कहाँ पे बाइंड होगी, उनके लिए पास कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे बाइंड होने के लिए, दे डोंट हैव एनी वैकेंट प्लेस टू बाइंड, ओके. दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, दिस आरबीसीज विल रिमेन एज इट इज़. कोई क्लम्पिंग नहीं होगा, कोई अग्लूटिनेशन नहीं होगा. इससे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स इन्फेक्शन. हाउ, बिकॉज द अग्लूटिनेशन इनिबिशन हैपेंड. अग्लूटिनेशन का इनिबिशन क्यों हुआ, अग्लूटिनेशन कब होता, जब ये आरबीसी जाके अगर वायरस से जाके रिएक्ट करती तब जाके अग्लूटिनेशन होता. लेकिन ये वायरस किनके साथ बाइंड हो चुका है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो चुका है. एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो आरबीसी जो है वो वायरस को बाइंड हो पाएगी का नहीं, क्योंकि वायरस ऑलरेडी इज ऑक्यूपाइड बाय द एंटीबॉडीज़, ओके. सो दैट्स वाई एंटीबॉडीज़ विल बाइंड विद द वायरस एंड दैट्स वाई द आरबीसीज विल रिमेन एज इट इज़ in the sample and there will be no agglutination happening and agglutination inhibition होगा, and that's why there will be the indication that the person is suffering from the particular measles virus infection, okay. so यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है कि agglutination inhibition होता है, जो agglutination actually आरबीसी में और मीजल वायरस में होना चाहिए था वो इनिबिट हो जाता है. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ पेशेंट, ओके. तो इसकी वजह से अग्लूटिनेशन नहीं हो पाता और इसकी वजह से वी कैन से दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसीज ऑफ मीजल्स, ओके. तो ये हुई बात पॉजिटिव टेस्ट की, ठीक है. मतलब अग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने बोला कि उस पेशेंट में वो वायरस ऑलरेडी एंटर हो चुका है, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज है, इसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उसमें डिसीज़ है, क्योंकि अग्लूटिनेशन मुझे नहीं दिखा. अब यहाँ पे अगर पेशेंट में एंटीबॉडीज़ नहीं है तब क्या होगा, मैंने सैंपल लिया, सैंपल में एंटीबॉडी तो है नहीं, तो मैंने उसमें वायरस डालने के बाद ऑब्वियस सी बात है वायरस किससे बाइंड होगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो है नहीं उस पेशेंट में, तब वायरस ऐसे ही रहेगा. वायरस वैसे ही रहने के बाद जब मैंने आरबीसीज उसमें डाली तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, और इसकी वजह से क्या होगा, अग्लूटिनेशन होगा, ठीक है. क्योंकि क्या होगा, एक आरबीसी क्या होता है, एक पार्टिकुलर एंटीजन होता है, ठीक है. वो वायरस से जब रिएक्ट करता है तब आपको पता है कि क्लम्पिंग मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम केस होगा कि जब वायरस और ये जो आरबीसी है वो दोनों रिएक्ट होगी, क्योंकि पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है एंटीबॉडी है नहीं. तो एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब व्हाट, दैट पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी एंटीबॉडी, सो पेशेंट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम द वायरल डिसीज एंड दैट्स वाई दिस क्लम्पिंग विल हैपन, बिकॉज वायरल पार्टिकल्स आर फ्री, they are not bound to anyone. That's why when we add the RBCs, they easily get bound to the RBCs, or
agglutination phenomenon is going to take place. That's why I can predict that patient is not suffering from any type of disease. Okay, अब ये हुआ एक एप्लीकेशन अग्लूटिनेशन इनिबिशन का, ठीक है, ये एक टाइप का एप्लीकेशन है अग्लूटिनेशन इनिबिशन का. इसके अलावा भी एक और अग्लूटिनेशन का एप्लीकेशन है, नॉट अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन इनिबिशन का. ओके, इट इज़ द प्रेगनेंसी डिटेक्शन. मतलब कोई वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं, ये अगर मुझे डिटेक्ट करना है, आई कैन डिटेक्ट इट बाय यूजिंग दिस फिनोमिनॉन नोन एज द अग्लूटिनेशन इनहिबिशन. ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो जनरली जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, ओके, द प्रेग्नेंट लेडी इज हैविंग अ हार्मोन नोन एज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और उसी को बोला जाता है एससीजी. ओके, एससीजी नाम का जो हार्मोन है वो प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, यूरिन में प्रेजेंट रहता है. दैट्स वाई इसी हार्मोन की मदद से हम उस वुमन की प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द एससीजी. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ओके, तो ये जो हार्मोन है ये किस में प्रेजेंट होता है? जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके यूरिन सैंपल में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अब अगर हमें किसी लेडी की प्रेगनेंसी डिटेक्ट करनी है, सपोज वी आर सस्पेक्टिंग दैट वुमन इज़ प्रेग्नेंट. ओके, सपोज हम ऐसा प्रेडिक्ट कर ले कि वो वुमन प्रेग्नेंट है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट सैम्पल ऑफ यूरिन. अब उसमें ऑलरेडी क्या है? एससीजी है. ठीक है, एससीजी प्रेजेंट है. अभी मैंने क्या किया, इस एससीजी को कुछ एंटीबॉडीज़ दी, एंटी एससीजी एंटीबॉडीज़. ठीक है, एंटी एससीजी दिया तो क्या होगा? एंटी एससीजी और एससीजी मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे, बट वो लैटिस फॉर्मेशन नहीं करेंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे. अभी क्या करना है कि इसमें मैंने कोई कैरियर मॉलिक्यूल डाला. अब जनरली क्या होता है, जब एंटीबॉडीज़, जो एंटी एससीजी होती है, एंटी एससीजी एंटीबॉडीज़ होती है, जब वो कैरियर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है ना, कैरियर मॉलिक्यूल थोड़ा लार्ज होता है. ठीक है, और आपको पता है लार्ज मॉलिक्यूल जब एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, या पार्टिकुलेट एंटीजन अगर किसी एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अग्लूटिनेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो हमने बाद में डाला है. ठीक है, पहले हमने क्या लिया? सैंपल लिया, यूरिन सैंपल. अब हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट द वुमन इज़ प्रेग्नेंट. अगर हम प्रेडिक्ट कर ले कि वो वुमन प्रेग्नेंट है, तो उसमें एससीजी होगा. एससीजी के लिए मैंने एंटीबॉडीज़ डाली, एंटी एससीजी. तो ऑब्वियस सी बात है वो एंटीबॉडीज़ पहले किससे बाइंड होगी? एससीजी से बाइंड होगी. तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री नहीं होंगी. तो फ्री नहीं होंगे तो कैरियर मॉलिक्यूल डालने के बाद भी कैरियर मॉलिक्यूल से क्या वो बाइंड हो पाएगी एंटीबॉडीज़? नहीं, वो एससीजी से ऑलरेडी बाइंड हो चुकी है. तो उसके बाद जो रिएक्शन होगी, क्या आपको अग्लूटिनेशन दिखेगा? वहाँ पे नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि एससीजी जो यूरिन सैंपल में था वो ऑलरेडी एंटीबॉडी से बाइंड हो चुका है. तो एंटीबॉडीज़ फ्री नहीं है, तो मैंने कितने भी कैरियर मॉलिक्यूल डाले वो उस एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होंगे. एंड दैट्स वाई देयर विल बी नो अग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड अग्लूटिनेशन इनिबिशन. ओके, दैट्स वाई इट विल लीड टू मी टू प्रेडिक्ट दैट कि वो वुमन प्रेग्नेंट है. ये ओल्ड प्रेगनेंसी किट में यूज़ किया जाता था. ये जो अग्लूटिनेशन इनिबिशन ऐसे है वो ओल्ड प्रेगनेंसी किट्स में यूज़ किया जाता था. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं है. ओके, उसके यूरिन में एससीजी नहीं है, तब क्या होगा? ओके, तब निगेटिव टेस्ट कैसे आएगी? तो वहाँ पे क्या होगा? अभी ऑब्वियस सी बात है उसमें वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं थे, उसके यूरिन में एससीजी होगा क्या? नहीं होगा. ठीक है, एससीजी नहीं है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि एससीजी नहीं होने की वजह से जब मैंने एंटीबॉडीज़ डाली, एंटीबॉडीज़ फ्री होंगी क्योंकि उनके पास एससीजी है ही नहीं बाइंड होने के लिए. तो एंटीबॉडीज़ मैंने डाली है, उनको थोड़ी देर रखा, उसके बाद मैंने क्या डाला? उसमें कैरियर मॉलिक्यूल डाला. ठीक है, कैरियर मॉलिक्यूल डालने के बाद आपको क्या दिखेगा? अग्लूटिनेशन दिखेगा. क्यों? क्योंकि यूरिन सैंपल में कोई एससीजी था ही नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है एंटीबॉडीज़ फ्री होंगी. एंटीबॉडीज़ फ्री होंगी तो एंटीबॉडीज़ ईजीली किससे बाइंड हो पाएगी? विद द कैरियर मॉलिक्यूल. ओके, कैरियर मॉलिक्यूल थोड़ा लार्ज साइज का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लम्पिंग फॉर्म करेगा या अग्लूटिनेशन दिखाएगा. इससे मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उसके यूरिन सैंपल में एससीजी था नहीं, इसकी वजह से एंटीबॉडी फ्री रही, और वो फ्री थी इसकी वजह से हमने जब कैरियर डाला वो जाके ईजिली कैरियर से बाइंड हो गई एंटीबॉडीज़, और वो क्लम्पिंग देने लगी. तो इसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि वो वुमन में एससीजी नहीं है. सो दैट वुमन इज़ नॉट
प्रेग्नेंट। ओके, एंड एंटीजन जब होता है तभी एंटीबॉडी बाइंड होती है ना, इजी सी बात है। अगर एससीजी है तो एंटीबॉडी बाइंड होगी, वो फ्री नहीं होगी तो वो कैरियर से बाइंड ही नहीं होगी, कैरियर से बाइंड नहीं होगी तो अग्लूटिनेशन होगा ही नहीं, और अग्लूटिनेशन नहीं हुआ मतलब कि वो वुमन प्रेग्नेंट है, उसमें एससीजी है, समझे। तो यही आपको डिफरेंस याद रखना है, एंटीजन सॉरी एससीजी अगर प्रेजेंट है तो वुमन प्रेग्नेंट है। ओके, तो अग्लूटिनेशन आपको नहीं दिखेगा। व्हेन एससीजी इज प्रेजेंट अग्लूटिनेशन इज नॉट सीन एंड दैट वुमन इज नॉट प्रेग्नेंट। अगर एससीजी है तो अग्लूटिनेशन सॉरी एससीजी नहीं है तो अग्लूटिनेशन दिखेगा। उल्टा कैसे यहाँ पे, ठीक है, एससीजी है तो अग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा, एससीजी नहीं है तो अग्लूटिनेशन दिखेगा, ठीक है। देन वी कैन से दैट वुमन इज प्रेग्नेंट। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। सो दैट्स अबाउट इट। इससे हम क्या इसका हम यूज़ करके एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शन का हम डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग द एंटीबॉडीज ऑब्वियसली। और अगर हमें प्रेगनेंसी डिटेक्शन भी करना है तो हम इस ऐसे का मदद ले सकते हैं, दैट इज़ द हेम अग्लूटिनेशन इनहिबिशन रिएक्शन। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस point, please do contact me, and thank you. Keep watching the lectures.